Namaskar. We all are passing through a very critical juncture for unforeseen danger due to epidemic coronavirus around the world. We should be able to fight it out with courage and strong determination and stand up jointly along with Sri Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India, and Srimati Mamata Banerjee, Honorable Chief Minister of West Bengal, and respective state governments in the hour of emergency. Pray that we all emerge out of the current critical situation strongly and with good health. Please take care of yourself and be safe. We should abide by all the government directives. Gandhiji said, "The earth has enough for one's need, but not enough for one's greed." Mother Earth is a source of life, nourishment, and learning, and provide this as well as spirituality and all else we need to live well, and we all are in a part of Mother Earth. We have wrought great destruction, degradation, disruption of Mother Earth, putting life as we know it today at significant risks through habitat destruction, species elimination, climate change, and other threats. Existing economic system treats the natural world as property that can be exploited and degraded. However, while the earth is wandered by several actions of the mankind, it has the power to emerge stronger in continuation to that. While the coronavirus pandemic has created a lot to havoc across the globe, it has also shown the power of nature, how it can fight all odds to strengthen itself. In this context, we like to mention the COVID-19 prevention policy in the wake of COVID-19 pandemic and the ongoing countrywide lockdown. Hotspots and management continues to provide various initiatives to help the citizen to cope with the unusual situation and to ensure civic services and amenities are available while maintaining hygiene and safety of the neighborhood. Multiple citizens have come forward in this trying situation to extend their support to management in the form of voluntary service. Management is requesting for voluntary support, neighborhood volunteers from residents of hotspot who may consider joining the hands with the authority to effective delivery of service across 18 indicative areas within hotspot. Neighborhood volunteers would be helped by management to help in their respective specific block, housing state, communal enclave, that is at their place of work or place of stay in hotspot area. We have no words to express our gratitude to all the doctors, nurses, conservancy and support staff, emergency and essential departments and agencies, media people, police administration, government officials and others should be praised for all the laudable part they are playing in this critical moment round the clock. We are looking forward for your support to the administration, to the great cause, and be safe and stay home. Namaskar. Namaskar. I am Professor Dr. Akhilesh Khan, Emeritus Professor Antar Bharati Homeopathy Medical College, Nagpur, Maharashtra. Former Administrator DN the Homeopathy Medical College and Hospital, Government of West Bengal, Calcutta. We are going through a very crucial period of time. The entire civilization has been facing a great trouble owing to COVID-19. I salute to all doctors, including Ayush medical officers, nursing staff, other health personnel working in the front line area. My dear friends,
homeopathy has very good checkered history to tackle different epidemic diseases like cholera, scarlet fever, Spanish flu, joy bangla, viral conjunctivitis, chikungunya and so many other. We know a certain percentage of entire population have been affected, but a large numbers of population are still in apparent health. Homeopathy has a good numbers of medicine by which it can prevent this epidemic and also cure the affected ones along with the general management of diseases. So it is my appeal to all citizens of this planet, please consult with local homeopath whenever you feel unwell in respect of your health. Please follow the advisory given by your government. Stay home, enjoy your life with homeopathy, enjoy your family with homeopathy. Homeopathy is not only a mode of treatment, but it makes a man perfect. So stay home, stay with your family with homeopathy. Thank you to all of you. I, Dr. Prem Sundar Das, observe that sound body is sound mind, and sound mind is sound body as well. Mind governs body, and spirit governs everything. Yoga is the best remedial antidote to overcome the multi-systematic dysfunction-oriented syndromes, whether it is neuromuscular or skeletal muscular, cardiorespiratory or cardiovascular syndromes. Hatha Yoga deals with the body and Raj Yoga deals with the mind. So we should practice Hatha Yoga as well as Raj Yoga. Physiological dysfunction, functional adaptation of locomotion, and with the Raj Yoga, mental tranquility, boost up the confidence quotient, you overcome the fear psychosis, lack of confidence, so many things. It helps to improve the immune defense system as well. This holistic science helps to overcome the present crisis of the corona syndromes. I do believe if everybody practices this holistic science with holistic approach can overcome. नमस्कार, मैं डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, एक्स CMO गवर्नमेंट नेचुरोपैथिक हॉस्पिटल हनुमानगढ़ टाउन, श्री शैलेंद्र सिंह जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि आपने स्वदेशी सैनिटाइजर का उत्पादन किया है और यह विद्वान चिकित्सकों की राय से, उनकी सलाह से शास्त्रीय योग के रूप में इसका निर्माण करके और जनहित में इसको प्रचारित कर रहे हैं। आज के युग में ये ज़रूरी है कि आयुर्वेदिक उत्पादन से स्वदेशी रूप से सस्ता और सरल सैनिटाइजर उपयोग में लाया जाए। ये कार्य आपका प्रशंसनीय है। इसके लिए मैं आपको व आपकी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक सफल कदम उठाया है। पुनः मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे भयभीत है। अब ये कोरोना एक वायरस है और इसी की प्रजाति है कोविड-19। नोवल कोरोना 19 जो थोड़ा खतरनाक है, ये हमारे शरीर में अगर प्रवेश कर जाता है तो इससे छुटकारा पाने के लिए हमें तरह तरह के तरीके अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि जो ये शरीर में प्रवेश कर गया तो जहाँ भी गंध होगी, जहाँ भी विजातीय द्रव होगा, उसमें ये डेवलप करने लगेगा और हमारी श्वास नलिकाओं में सूजन पैदा कर देता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत आती है और मृत्यु तक हो सकती है। लेकिन फिर भी इतना डरने की जरूरत नहीं है। इस कोरोना को ठीक करने के लिए या इस कोरोना को बचे रहने से के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला डिफेंस का, दूसरा ऑफेंस का। डिफेंस के तरीके में हम मुंह पर मास्क लगा सकते हैं, एक दूसरे से दूरी बनाकर रह सकते हैं, कमरे में बंद रहते हैं और सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम जब भी कोई काम करते हैं उसके बाद सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मुंह पर मास्क लगा के रखें, घरों में बंद रहें, एक दूसरे से मिलें ना। पहला बचाव का तरीका ये हो गया। इसके साथ साथ
भोजन में अपने वजन का 1% सलाद खाएं, सब्जी खाएं और फल खाएं। जो भी मौसम के फल हैं वो फल खाएं। सलाद में गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी और टमाटर, इस तरह के फलों का सेवन हम कर सकते हैं। अपने वजन का 1%। ये हो गया हमारे बचाव का तरीका। दूसरा तरीका है ऑफेंस का। अगर हम बीमार हो भी जाते हैं तो उसके लिए क्या करें? अगर बीमार हो जाते हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा की कुछ थेरेपीज हैं, उनको अपनाना चाहिए। हमें अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ानी चाहिए। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हमें एनिमा, मसाज, मिट्टी पट्टी और स्टीम बाथ, ये चीज़ें हफ्ते में 1 बार लेनी चाहिए। कोरोना महामारी के संदर्भ में प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत ही अहम रोल है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आज ये जो प्रिंसिपल है स्वास्थ्य का, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये लॉकडाउन उसी का प्रमाण है। प्राकृतिक चिकित्सा के जो स्वर्णिम सिद्धांत हैं, जिसमें स्वच्छता, शुद्ध आहार, प्रकृति का साथ, योग, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें, ध्यान इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर दैनिक जीवन में भी हम इन सभी चीज़ों का पालन करें तो मेरा विश्वास है कि इस तरह के रोग की संभावना ही नहीं है। और कदाचित रोग हो भी जाए किसी संक्रमण से, क्योंकि संक्रमण भी प्रायः उन्हीं लोगों को प्रभावित करता है जो अंदर से कमज़ोर होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता शरीर की बहुत ही कमज़ोर होती है। उन्हीं लोगों को इस तरह के रोग अधिक प्रभावित करते हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है। নমস্কার, আমি যোগ বিশেষজ্ঞ উজ্জ্বল কুমার ঘোষ বলছি। এখন আমরা সকলেই গৃহবন্দী বা লকডাউন অবস্থায় রয়েছি। এখন আমাদের প্রত্যেকেই সেলফ ডিস্টেন্স বা সোশ্যাল ডিস্টেন্স থাকা খুব বেশি জরুরি। এই জরুরি শুধু থাকলে হবে না, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই মরণ ব্যাধির সঙ্গে আমাদের লড়াই করতে হবে। লড়াই করার জন্য আমরা যেটুখানি জেনেছি এই ভাইরাসটি আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক আপার এবং লোয়ারের উপরে বেশি এফেক্টেড হচ্ছে। এটা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে আমরা যেহেতু এখনও কোনো মেডিসিন আবিষ্কার হয়নি, প্রিভেনশন বেটার দ্যান কিউর, সকলেই বলছে নিজের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আমাদের প্রত্যেককেই রেগুলার কিছু ব্রিদিং এক্সারসাইজ, কিছু প্রাণায়াম, কিছু ফিজিক্যাল আসন আমাদের খুব বেশি জরুরি। এটা থেকে এবং তার সঙ্গে আমাদের কিছু ফুড হ্যাবিটও করা একান্ত বেশি জরুরি। এটা বিশেষ আমার মতামত নিয়ে আপনারা প্রত্যেকেই অভ্যেস করুন, তাতে আমার মনে হয় সকলে। मैं प्रोफेसर डॉक्टर एनपी सिंह, पार्वती विद्यापीठ का डायरेक्टर, अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद का जनरल सेक्रेटरी और इंटरनेशनल ट्रेडिशनल मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पर आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि आज जिस महामारी के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, कोरोना के प्रकोप से, उसमें हम सभी कहीं ना कहीं एक सैनिक के रूप में हैं। चाहे वो चिकित्सक हों, चाहे वो आम नागरिक हों, चाहे हमारे पुलिसकर्मी हों या और क्षेत्र के लोग हों, हर आदमी एक सैनिक के रूप में काम कर रहा है। हाँ, ज़रूर ये है कि चिकित्सक एकदम सामने से लड़ाई लड़ रहे हैं, पुलिसकर्मी सामने से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो घरों में हैं हर जनता, हर लोग, वो भी एक सैनिक है, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है इस लड़ाई में लड़ने के लिए। तो आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि आप सभी इसको अपने स्तर पर ज़रूर लड़िए और इसके लिए बेहतर है कि आप जो भी गाइडलाइन आपको है सरकार के तरफ से, प्रशासन की तरफ से, उसको मानिए। और साथ ही एक चीज़ और है कि आप अपनी क्षमता को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए
आयुष के मापदंडों के अनुसार जो चीज़ें हैं उसको आप मानिए, उसके तहत अपने को तैयार रखिए ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। आप प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में अपने शरीर का शोधन कर सकते हैं, शरीर के हर सिस्टम को आप डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं ताकि आपकी इम्यूनिटी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत डेवलप हो और आपके प्रति आपके शरीर को कोई भी रोग जल्दी प्रभावित न कर सके। इसलिए आप प्राकृतिक चिकित्सा का सहयोग ले सकते हैं शरीर का शोधन करने के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप ठाकुर, प्राकृतिक चिकित्सक, आपको कोरोना के बारे में कुछ हिदायतें देना चाहता हूँ। हमें सबसे पहले तो जो सामान्य स्वच्छता के नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। उनके पालन करने से हमें जो है कि अगर हम इससे सुरक्षित रहते हैं, ये हमारे शरीर में आता है, तो हमें बाकी चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ जो प्रायः हम सुनते हैं कि हमारे शरीर की रोग प्रतिशोधन क्षमता यानी कि इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो इसके साथ में लड़के इसको ख़त्म कर देती है। तो इसके लिए हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई तरीके हमने सुने हैं। उसके साथ साथ मैं एक श्लोक भी आपको बोलना चाहता हूँ, वो है यद्यभि अभुवि न तद्भवि भवचेत न तद् अन्यथा इति चिंता विसग्नो यम बदो ब्रह्म निवर्तना। इसका जो अर्थ है वो है कि जो नहीं होना है वो नहीं होगा, जो होना है वो तो होगा। इस ज्ञान द्वारा हम अपने जो चिंता रूपी हमारे विषय जो हैं वो ख़त्म कर देते हैं कि जो होना है उसके लिए हम ये नहीं कहता है कि हम किस्मत के साथ बैठे रहे। हमने अपने जो नियम है वो तो पालन करने ही हैं। उसके साथ साथ हम चिंता से, जैसे कि सभी अभी रिसर्च भी होती है उसमें ये कहता है कि चिंता हमें ऐसे हमारे अंदर से विश्व रूपी हार्मोन पैदा करती है कि जो हमारे डर के हार्मोन है वो पैदा होते हैं, जिससे कि हमारी कोई भी छोटा सा भी, कोरोना तो बहुत बड़ा एक विषाणु है, ये छोटे हमारे और भी चीज़ हमें हमला करती है और हमें बीमार करती है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने स्वच्छ रहना है, दूसरा हमने चिंता से दूर रहना है। और हम इसके साथ साथ अगर चाहें तो हम सुबह की धूप लगभग 45 मिनट पीठ, उससे हमारे शरीर में विटामिन डी का भी बनना शुरू होता है और वो विटामिन डी बनता है। একটি ছোঁয়াচে রোগ, এর সিমটম কি? জ্বর, গলা ব্যথা, কফ এবং শ্বাসকষ্ট। এখানে আমাদের থুতু, ব্লাড এবং কফ এর মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। তাই মিডিয়াম হচ্ছে হাত থেকে মুখ, চোখ, নাক। আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে যে সায়েন্টিস্টরা রিসার্চ করে যোগের উপর বিশেষত অ্যাটেনশন করেছেন, তারা ব্রিদিং এক্সারসাইজ এবং বিভিন্ন আসন, প্রাণায়াম, ধ্যানের উপর জোর দিয়েছেন। কারণ ইমিউনিটি পাওয়ারকে আমাদের বাড়াতে হবে। ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়লে পরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা তৈরি হবে এবং যারা এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন তারাও এখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। প্রাণায়াম, মেডিটেশন এর মাধ্যমে আমরা ইমিউনিটি পাওয়ারকে বাড়াতে পারি। এছাড়া আমাদের দুর্বলতা এবং ভয় চলে যাবে আমরা নিয়মিত যোগ অভ্যাস করলে। আমরা যদি 40 থেকে 45 মিনিট যোগ অভ্যাস করতে পারি প্রতিদিন, তাহলে আমরা এই রোগের প্রকোপ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো এবং আমরা সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে বেঁচে থাকতে পারবো। এবং যারা এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন তারাও যদি নিয়মিত যোগ অভ্যাস করেন, কারণ বিজ্ঞানীদের দ্বারা, রিসার্চের দ্বারা পরীক্ষিত সত্য, भारतीय ऋषिरा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सरस्वती काला, डायरेक्टर आरोग्यम योगा नेचुरोपैथी सेंटर देहरादून एंड HOD योगा डिपार्टमेंट SGRR यूनिवर्सिटी देहरादून उत्तराखंड से।
जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस समय हम एक कोरोना नामक महामारी से जूझ रहे हैं, तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो है प्राकृतिक जीवन। प्रकृति की तरफ अगर हम लौटें तो प्रकृति के माध्यम से हम अपने आप को इससे बचा सकते हैं, क्योंकि एक प्रकृति ही है जो हमें इस महामारी से बचा सकती है। हमें प्रकृति की ही शरण में जाना चाहिए। तो हमें सबसे पहले इसके लिए क्या करना चाहिए, तो ये सबसे मेन चीज़ आपको ये करनी चाहिए कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ा सा चेंज करें। अपना उठने का, सोने का जो समय है उस पर ध्यान दीजिए। सुबह जल्दी उठिए, शाम को जल्दी सोइए, क्योंकि आजकल हम लॉकडाउन में हैं। तो कम से कम हमारी जो आदतें खराब हुई थी, जो आदतों की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो गड़बड़ हुआ है, क्योंकि देखिए आज इम्यून सिस्टम हमारा सही नहीं है, इसलिए हमारी ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला आप अपनी आदतें इस समय सुधार सकते हैं। जल्दी उठिए, सुबह उठिए, योगा करिए, थोड़ा बहुत प्राणायाम का अभ्यास करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह आप करिए। खाने पीने का आप अपना ध्यान रखिए। खाने में आप जितना हो सके सात्विक भोजन लीजिए और हल्का आहार लीजिए। इस समय भी जितना हल्का आहार आप लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, जिसमें आप गर्म पानी पीजिए। लेमन टी आप ले सकते हैं, लेमन टी सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है इसमें। इसके साथ में लहसुन आप इसमें खाने में अपना प्रयोग करिए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। आप घर पे रहिए, अंदर रहिए और अपना ध्यान रखिए। अपनी आदतों को इस समय अच्छे से सुधार करके। बंधुओं नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय सिंह गोरखपुर से। प्राकृतिक जीवन आज हमारा मूलभूत सिद्धांत बनते जा रहा है और इसके पूर्व में भी ये सिद्धांत बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। और यदि हम प्राकृतिक जीवन को अपनाएं तो हम पूर्ण रूप से अपनी सारी व्यवस्था को, यानी स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से सुरक्षित कर सकते हैं। वर्तमान में आई विश्व की महामारी, जिसमें सभी ने माना है कि किसी प्रकार का कोई इस समय उचित उपचार नहीं है, और इसमें एक बात तो सबने माना है कि इस उचित उपचार के अतिरिक्त हम यदि अपने स्वास्थ्य में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाएं तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं और ये बीमारी भी उस व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर पा रही है। और आप जानते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा प्राकृतिक औषधि है, प्राकृतिक फल है, सब्जियां हैं और प्राकृतिक जीवन है, जिसको अपना करके आप अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। हमने भी इसी का प्रयोग करते हुए एक हर्बल सैनिटाइजर का प्रयोग किया और बनाया है, जिसमें प्राकृतिक औषधि का इस्तेमाल किया गया, जिसमें मूल रूप से नीम, तुलसी। हॅलो नमस्कार, मी डॉक्टर नरेंद्र कठारे, सुखसुंदर निसर्गोपचार केंद्र, लातूर, महाराष्ट्र। मैं आपको निरोगी जीवन जीने की कला बताने जा रहा हूँ। निरोगी जीवन जीने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है। प्रातःकाल को उठने के बाद गर्म पानी में नींबू डाल के या तुलसी के पन्ना डाल के हम वो पानी भरपेट पीने से हमारे पेट के अंदर जो विजातीय द्रव्य मल संचित होता है वह बाहर निकल जाता है और लंग्स में जो कफ जमा होता है वो भी बाहर निकल जाता है। विजातीय द्रव्य शरीर से बाहर निकलने से हम निरोगी हो जाते हैं। निरोगी होने से करने के लिए पंच तत्वों का उपयोग करना चाहिए। पंच तत्वों में मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, इन पांचों का इस्तेमाल किया जाता है। हम सुबह। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शर्मा, निवारू रोड, झोटवाड़ा, जयपुर से आपको इम्यूनिटी किस प्रकार बढ़ाई जाए इस बारे में बताने जा रहा हूँ। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में इम्यूनिटी बढ़ाने के काफ़ी तरीके हैं। जैसे प्राकृतिक चिकित्सा में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गर्म पात स्नान है, जिसके अंदर 15 मिनट पैर गर्म पानी में रखिए और उसके तुरंत बाद 2 मिनट पैर ठंडे पानी में रखिए। इस प्रक्रिया के तहत शरीर में रक्त संचालन सही हो जाता है और रक्त संचालन ही प्राकृतिक चिकित्सा में मुख्य सुधारात्मक प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि रक्त संचालन अगर सही रहेगा